Hello friends, I am Dr. Pooja Pasur and I hope you all are fine and doing good. So today we are going to complete this chapter, Geography, chapter number 1, the Earth in the Solar System. So last time we have completed half of the portion of this chapter. So today we are going to complete full chapter. So we'll start from Solar System. So here we can see the picture of Solar System. The Sun is in middle. Sun is in middle, then Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, then Jupiter, then Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. The solar system. The Sun, it consists of the Sun, the planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids, meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the Sun as its head. Who is the head of the solar family? That is Sun. So we'll read about the Sun. The Sun is in the center of the solar system. The Sun is in the center of solar system. It is huge. Sun is huge and made up of extremely hot gases. The Sun is made up of extremely hot gases. It provides the pulling force for the force that binds the solar system. The solar system is like this, no? This is Sun, and around this, in orbit, other planets are moving. So they are moving with the help of pulling force, which is binding. Okay, and that force is given by Sun. Sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. The Sun is the ultimate source of heat and energy for the solar system. So in Roman mythology, Sol is a sun god. Solar means related to the sun, is therefore called as the solar system. But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is so far away from us. It is about 150 km away from the earth. The sun is 150 km away from the earth. Okay, sun is 150 km away from the earth. Now we'll read about planet. There are 8 planets in our solar system in order of the distance from the sun. They are: first is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So in easy way you can learn, you can memorize in an easy way, like my very energetic mother just served us nuts. So in like this way you can remember this. The names of the planet you can remember easily. So next is, all the 8 planets of the solar systems move around in a fixed path. So these all planets we have seen, no, they move in a fixed path. The paths are elongated, they are called orbits. So they move like this, no, like this. So that is orbit. In orbit they move. So we'll read about Mercury. Mercury is the nearest to the sun. So Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. So Mercury takes only 88 days to complete a round along its orbit. Means around sun. It takes 88 days. Now Venus. It is considered as Earth twin. So who is called as Earth twin? Who is called as Earth twin? Because Venus is called as Earth twin because its size and shapes are very similar to that of Sun. Because Venus का जो शेप और साइज है वो सिमिलर है सन का. अभी प्लूटो क्या है? एक डॉफ प्लैनेट है और वो टिल अगस्त 2006 तक ही उसको हम प्लैनेट कंसिडर करते थे. अभी हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. तो जो अर्थ है ना वो थर्ड नियरेस्ट है, बट इन साइज, जो साइज है, इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स. तो पोल्स क्या है? पोल्स जो अर्थ का जो अपर पोजीशन, ये देखिए अर्थ है, तो ये जो है ये पोल्स, ये पार्ट है ना, ये थोड़ा फ्लैटन है, ये पार्ट थोड़ा फ्लैटेंड है, फ्लैट टाइप का है. तो दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़
डिस्क्राइब एज जियोइड। तो ये इसको हम जियोइड शेप बोलते हैं जो अर्थ का, क्योंकि इसका जो दोनों साइड का जो पोल है वो थोड़ा फ्लैट एंड है, इसलिए हम इसको जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस आर फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। तो अर्थ ही है जिसमें लाइफ सपोर्ट करता है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो अर्थ क्या है, क्लाइमेट ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। तो अर्थ में वाटर भी है, एयर भी है, और क्या है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी है जो लाइफ सपोर्ट करता है। तो आउटर सरफेस जो है अर्थ का जो आउटर सरफेस है वो क्या है, ब्लू कलर है। इट्स अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3, जो 2/3 है ना, इट इज़ कवर्ड बाई वाटर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इट्स कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका जो 2/3 है वो पानी से घिरा हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे मून के बारे में। तो मून जो है, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। तो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है, वो है मून, दैट इज़ मून। ओके, अर्थ का सैटेलाइट मून है। तो इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। ओके, इट अपेयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो जितने भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज हैं ना, उनसे ये हमारे अर्थ के थोड़ा पास है, तो हमें ये इसीलिए थोड़ा बिग लगता है। कौन, मून। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो ये अर्थ से कितना दूरी में है, 3,84,400 किलोमीटर। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो एक जो 27 डेज है ना, वो एक राउंड करता है जो मून है अर्थ का। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट द सेम। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो क्या होता है, एक साइड का जो मून है वही विजिबल होता है अर्थ को। द मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। तो मून का जो है लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। जो पहले इंसान थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून ऑन 21 जुलाई 1969। सो ये आप याद रख सकते हैं। तो नाउ इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर। जैसे कि हमारे अर्थ में वाटर है, एयर है, ऑक्सीजन भी है, पर मून में ये सब नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स। तो मून में क्या है, माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशंस है ऑन इट्स सरफेस। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, मून में थोड़ा शैडो टाइप का आता है। ठीक है, माउंटेन है, प्लेन है, डिप्रेशंस है। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। तो हमने पढ़ा था ना, सेलेस्टियल बॉडीज में एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। दैट आर अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडी। तो सन के चारों ओर सेलेस्टियल बॉडीज भी घूमते हैं, और वो हैं छोटे छोटे बॉडीज, वो है एस्टेरॉइड्स। ठीक है, एंड ये जो है ये किस इन बिटवीन, ये कहाँ पाए जाते हैं, इज़ फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो जुपिटर और मार्स के बीच में जो ऑर्बिट है वहाँ पे ये पाए जाते हैं एस्टेरॉइड्स। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि बहुत साल पहले जो हमारे प्लैनेट्स थे ना, वो एक्सप्लोर हो गए थे, वो एक दूसरे से टकरा के टूट गए थे। तो उन्हीं का जो बचा हुआ हिस्सा है वो है एस्टेरॉइड। ओके, आप ये यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए, ये है मार्स, ये है मार्स, ये है मार्स, ये है जुपिटर। ओके, और ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। ये है, ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर वो है एस्टेरॉइड, मार्स और जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे मेटेरॉइड्स। तो मेटेरॉइड्स क्या है, आइए देख लेते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो जो एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है ना, जो सन के अराउंड घूमते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स, जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं। समटाइम दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो समटाइम क्या होता है, कभी कभी जो ये मेटेरॉइड्स है, रॉक पीस होते हैं छोटे छोटे, हमारे अर्थ के सामने आ जाते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं।
तो ये टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो ये जो है ना प्रोसेस में ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये एयर का कांटेक्ट में आके फ्रिक्शन बन के ये हीट होके ये बर्न हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट। तो इससे जो हीट होके बर्न हो जाता है इससे फ्लैश ऑफ लाइट होता है, आग लगता है। समटाइम्स ए मेटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो। तो पूरा जले ही कभी कभी ये बिना पूरा कंप्लीट जलते नहीं हैं और ये कम्प्लीटली ये फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं अर्थ में और एक हॉलो क्रिएट कर देते हैं हमारे धरती पे। तो अभी हो गया मेटेरियल्स। अभी आप अभी मेटेरियल्स हो गया। अभी हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में देखते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, इट इज़ ए वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. तो मिल्की वे जो है ना ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार बन के ये एक वाइट ग्लोइंग पाथ की तरह है, गोल गोल वेव की तरह, एक बहुत अच्छा जैसे एक बैंड की तरह। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए ये कैसे ये पूरे स्टार्स है। ये देखिए कैसे ये ऐसे बन के रखे हैं। सो आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो ये जो गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी का पार्ट ही है हमारा सोलर सिस्टम। इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो पहले एंशियंट में क्या बोला जाता था, ये एक नदी है जो लाइट का जो फ्लो हो रहा है स्काई में, और उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम आकाश गंगा के नाम से जाना जाता था। सभी हम जानेंगे व्हाट इज़ गैलेक्सी। इट इज़ ए ह्यूज सिस्टम। गैलेक्सी इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है एंड क्लाउड्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट ऑफ गैसेस। तो गैलेक्सी में क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लाउड्स है, डस्ट है एंड गैसेस है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से यूनिवर्स बनता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। ओके, सो लेट अस सी हियर, सपोज दिस इज, ये हम हैं, ये अर्थ है, देखिए ये अर्थ है, ये हम हैं, ये अर्थ है, फिर है उसके बाहर सोलर सिस्टम, उसके बाहर मिल्की वे, उसके बाहर द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज सो बिग। ओके, यूनिवर्स इज सो बिग। So here we have completed the first chapter. So in next video I'll be uploading the MCQ of this chapter. If any doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much, and please do subscribe to my channel so you can get the notification of all the videos in timely. Thank you.